دنیا میں معاشی نظام کو چلانے کے لیے مختلف تجربات کیے گئے اور ان تجربات کے نتیجے میں انسانوں کے ہاتھوں مختلف معاشی نظام وجود میں آئے۔ یہ معاشی نظام بنتے رہے ہیں، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور اپنے ارتقاء کے مراحل سے یہ گزرتی رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے پچھلے 200 سال کے درمیان دیکھیں تو جن معاشی نظاموں نے دنیا پر اپنا سب سے زیادہ اثر چھوڑا ان میں سوشلزم نہایت اہم ہے۔ سوشلزم کا نظریہ ایک ایسا نظریہ جس کے مطابق سب سے اہم چیز سوشل ویلفیئر، سماجی بہبود ہے، یعنی تمام انسانوں کی ویلفیئر کا نظریہ ہے یہ۔ اس نظریے کے تحت کلیکٹیو ویلفیئر کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی ایک کی نہیں بلکہ سب کی فلاح کے لیے کام کیا جائے گا۔ لیکن اب یہ کام ہوگا کیسے؟ تو سوشلزم کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک کلیکٹیو ویلفیئر چاہتے ہیں تو ہمیں ویلفیئر کے معاملے کو اسٹیٹ پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی جو ریاست ہے وہ اس مسئلے کو سنبھالے گی۔ اب اگر ریاست نے اس مسئلے کو سنبھالنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تمام وسائل جو ہیں وہ حکومت کے ہی ہاتھ میں ہوں گے۔ جب حکومت کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہوں گی تو پھر وہ اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر پائے گی۔ تو طے یہ ہوا کہ سوشلزم کا نظریہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی فلاح یکساں انداز سے ہو، ہر انسان برابری کی بنیاد پر دیکھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے لیے پھر تمام وسائل پر حکومت اور ریاست کا قبضہ ہونا چاہیے ہے، اور پھر ریاست یہ طے کرے گی کہ کس کو کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، اور کس طرح سے ایکول ڈسٹریبیوشن کو ممکن بنایا جائے گا۔ ملک کے جو بھی ریسورسز ہوں گے ان کا استعمال پوری قوم کی بہبود کے لیے کیا جائے گا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ملک میں کچھ ریسورسز موجود ہیں تو ان ریسورسز کو چند لوگ اپنی فلاح کے لیے استعمال کر سکیں، اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ملک کے جو بھی ریسورسز ہوں گے ان سب پر تمام لوگوں کا برابری سے حق ہے، ان کا استعمال حکومت طے کرے گی اور حکومت ہی ان کے بٹوارے کا نظام بنائے گی۔ اس کا مطلب کہ سوشلزم کے اندر پرائیویٹ پروفٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ سوشلزم میں ہر چیز حکومتی سطح کے اوپر طے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے طے یہ ہوا کہ ملک کے تمام وسائل حکومت کے قبضے میں ہوں گے، ریاست کے قبضے میں ہوں گے، اور ریاست ہر چیز طے کرے گی کہ کس طرح سے ان کی تقسیم کو ممکن بنایا جائے۔ اب اسی کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں دیکھتے ہیں اور سوشلزم کو کچھ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس کہ اس کی مکمل خصوصیات کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہر چیز کی ملکیت صرف اور صرف حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ ملک کے جتنے بھی وسائل ہوں گے وہ وسائل پانی کی شکل میں ہوں، درختوں کی شکل میں ہوں، پہاڑ ہوں، معدنیات ہوں، یا کوئی بھی اور چیز، ملک کی موجود فیکٹریاں، مختلف ادارے، ہر چیز مکمل طور سے حکومت کے قبضے میں ہوگی۔ تمام کا تمام حاصل ہونے والا پروفٹ وہ حکومت کے پاس واپس چلے جائے گا اور پھر حکومت ان کو عام لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرے گی۔ تو پہلی چیز، ریاست کی ملکیت، ہر چیز ریاست کی ملکیت میں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اکنامک ایکویلٹی۔ جو
कैपिटल सोशलिज्म का दूसरा जो नजरिया है वो है बराबरी, कि हर चीज के हर शख्स के साथ मुकम्मल तौर से बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट किया जाएगा। यही वजह है कि सोशलिज्म जिन मुल्कों में राइज होता है वहां पर अमीर या गरीब तबका नहीं होता, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वहां पर सब एक ही जैसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तीसरी चीज है इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम। चूंकि सब कुछ रियासत के हाथ में है तो रियासत ही प्लानिंग करेगी। रियासत तय करेगी क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, कहाँ प्रोड्यूस करनी है, कौन प्रोड्यूस करेगा, हमें कितने डॉक्टर्स चाहिए हैं, हमें कितने इंजीनियर चाहिए हैं, कितनी सड़कें बनानी हैं, कितने घर बनाने हैं। ये हर चीज की प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड होगी और ये सिर्फ और सिर्फ रियासत के हाथ में होगी। एक सेंट्रल अथॉरिटी जो कि यकीनन रियासत है वो इन तमाम मामलात का फैसला करेगी। इसके बाद है गवर्नमेंट मोनोपोली। अभी तक जो कुछ हमने सुना उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट की मुकम्मल इजारादारी है। गवर्नमेंट किसी भी किस्म के फैसले को आम लोगों के ऊपर नहीं छोड़ेगी। हर चीज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अपने हाथ में ले लेगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुल्क में जॉब्स के मामलात भी हुकूमत ही तय करेगी, क्योंकि हुकूमत ने प्लान कर लिया है कि कौन सी फैक्ट्रीज में काम होगा, किस किस्म की प्रोडक्शन होगी। तो फिर हुकूमत खुद ही ये तय करेगी कि किसने वो काम करना है। तो हुकूमत पहले से ही तयन कर लेगी कि उसको कितने मखसूस किस्म के लोग चाहिए हैं। उसको मखसूस किस्म की मशीनों पे काम करवाना है तो वो लोग वैसे ही तैयार करेगी। उसको डॉक्टर्स चाहिए हैं तो वो उतने ही डॉक्टर तैयार करेगी। यानी यहाँ पर एक शख्स को इस बात की आज़ादी नहीं होगी कि वो खुद से ये तय करे कि उसका करियर क्या होगा, वो आने वाले वक्तों में क्या बनना चाहता है, किस किस्म की जॉब करना चाहता है। ये जिम्मेदारी हुकूमत ले लेगी और हुकूमत जिस शख्स को जो जिम्मेदारी दे देगी उसको फिर वही काम करना होगा। प्राइस फिक्सेशन बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट ही प्लान कर रही है, तो कीमतों का तयन भी गवर्नमेंट ही करेगी। सारी इकोनॉमी हुकूमत के हाथ में है तो सूद का तसव्वुर नहीं हो सकता। सूद का तसव्वुर वहां होता है कि जहां पर उधार की लेन देन हो रही हो, एक शख्स उधार दे रहा हो, दूसरा शख्स उधार को वसूल कर रहा हो, तो उनके दरमियान फिर सूद का मामला तय होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हर चीज गवर्नमेंट तय कर रही है, गवर्नमेंट फैसले ले रही है, तो अब किसी शख्स ने कोई कारोबार करना नहीं है तो वो उधार लेगा नहीं। इसी तरीके से कोई भी शख्स अगर अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहता है तो वो ज़रूरत गवर्नमेंट के मुताबिक पूरी हो रही है, गवर्नमेंट उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ही नहीं है। कोई शख्स एक्स्ट्रा ख्वाहिश नहीं कर रहा, ना वो मिलने वाली चीज़ से ज़्यादा मांग रहा है, तो ना किसी को उधार चाहिए है, ना कोई उधार दे रहा है। हर चीज़ हुकूमत तय कर रही है, तो इंटरेस्ट का तसव्वुर ऐसी इकोनॉमी में नहीं हो सकता। इस पूरे तसव्वुर से ये बात सामने आ गई कि इस किस्म की इकोनॉमी मईशत मुकम्मल तौर से किसी एक के हाथ में है, जो कि है गवर्नमेंट। इसीलिए सोशलिज्म को कंट्रोल्ड इकोनॉमी के नाम से भी याद किया जाता है। इस किस्म की इकोनॉमी में किसी भी किस्म के नॉन प्रोडक्टिव गैर पैदावारी अखराजात नहीं होते। ये गैर पैदावारी अखराजात से मुराद होती है, मिसाल के तौर के ऊपर चीज़ें बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग करना। अब मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ वो पैदा कर रही है जिस चीज़ की ज़रूरत है। गवर्नमेंट वो प्रोड्यूस करने की इजाज़त दे रही है जिसको वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। गवर्नमेंट को पता है कि लोगों को क्या चाहिए है, तो वही चीज़ बस प्रोड्यूस हो रही है और लोगों को भी वही मिल रहा है जो गवर्नमेंट उनको देना चाहती है। तो चूंकि इसमें मामलात जो हैं वो मुकम्मल तौर से ज़रूरतों की हद तक हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिव खर्चे करने की किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ भी
ऐसे खर्चे नहीं होंगे जो पैदावार से हट कर हो। इस किस्म की इकोनॉमी में जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, मिसाल के तौर के ऊपर खाना, कपड़ा, मकान, ये जो बुनियादी चीजें हैं ये निहायत सस्ती होती हैं, बल्कि ज्यादातर मुफ्त होती हैं, क्योंकि लोग हुकूमत के कहने पर चल रहे हैं, हुकूमत ने अपनी हर चीज की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली हुई है। तो ऐसी सूरत में फिर इनको रोटी, कपड़ा, मकान देना हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है, और हुकूमत जो है वो इन चीज़ों को या तो मुफ्त देती है, या फिर अगर पैसे भी लेती है तो वो निहायत कम होते हैं। चूंकि यहाँ पर जो सारिफीन हैं, खरीदार हैं, या चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनसे किसी भी किस्म की राय नहीं ली जा रही, इसीलिए इस किस्म की इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर है वो निहायत हेल्पलेस होता है, उसकी कोई राय नहीं होती, वो वही चीज़ इस्तेमाल करने के ऊपर मजबूर होता है जो उसको दी जा रही है, अपनी मर्जी से वो कोई चीज़ मांग नहीं सकता। अभी जो कुछ हमने देखा ये थे जर्नल चीज़ें, जर्नली हमने समझ लिया कि इसकी क्या फीचर्स हैं। अब ये जो फीचर्स हमने पढ़े हैं, अभी इन्हीं फीचर्स को अब हम मेरिट और डीमेरिट्स के नाम पर पढ़ेंगे। वही सेम बातें एक दफ़ा फिर, अब हम अलग अलग कर रहे हैं। मेरिट्स में अगर हम बात करें तो सोशलिज्म का पहला मेरिट ये है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर से इक्वालिटी है, क्लास लेस कम्युनिटी होती है, यहाँ पर किसी भी किस्म की अमीरी और गरीबी के तस्वुरात नहीं होते। यहाँ पर एक और इस किस्म की इकोनॉमी का फायदा ये है कि प्लानिंग जो हो रही होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी के जरिए हो रही होती है, तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है। जब कोई एक प्लान कर रहा हो तो प्लान आसान होता है, उसकी एग्जीक्यूशन, उस प्लान पर अमल करना आसान होता है, प्लान बहुत स्पीडी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि प्लान एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है। मल्टीपल लोग नहीं हैं जो प्लानिंग कर रहे हो, जहां एक से ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं प्लानिंग करने वाली, वहां पर काम स्लो हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े बढ़ जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ स्टेट की तरफ से हो रही है। जॉब्स की किसी को फिक्र नहीं होगी, इसलिए कि किसी को सोचना ही नहीं है, गवर्नमेंट खुद बता रही है कि आपको फला जगह पे काम करना है, वहाँ के लोग जाएंगे और काम करेंगे, मखसूस टाइमिंग्स होंगे, मखसूस किस्म का काम होगा, और किसी को भी जॉब तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। सूद का किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, ये इकोनॉमी मुकम्मल तौर से सूद से पाक होती है। नॉन प्रोडक्टिव खर्चे नहीं हो रहे, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जो कुछ है सिर्फ वही इस्तेमाल हो रहा है, किसी को भी ज़्यादा कमाने की, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ बेसिक्स के ऊपर चीज़ें खर्च की जा रही हैं। मुकम्मल तौर से चीज़ें, बेसिक फैसिलिटीज़ या तो फ्री हैं या फिर इंतहाई सस्ते दामों हुकूमत की तरफ से मिल रही हैं। तो सोशलिज्म के जो मेरिट्स हैं वो अभी हमने यहाँ पर देखे। अब अगर हम इसकी डीमेरिट्स देखें तो डीमेरिट्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट मोनोपोली, मुकम्मल तौर से हुकूमत की इजारादारी, कोई शख्स हुकूमत के फैसलों पर एतराज़ नहीं कर सकता। हालांकि हम ये सब समझ सकते हैं कि हुकूमत भी इंसान ही चला रहे हैं, इंसानों से गलतियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, तमाम इंसानों की लिमिटेशंस और हदूद होती हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर से सब कुछ करने की आज़ादी है, वो सही करे गलत करे, अब लोगों को वही बात माननी पड़ेगी। प्राइस फिक्सेशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही प्राइस फिक्स कर रही है, तो जब गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर रही होती है तो प्रॉफिट के तस्वुरात मुकम्मल तौर से खत्म हो जाते हैं। इस किस्म की इकोनॉमी मुकम्मल तौर से कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी का नुकसान ये है कि ऐसी जगहों के ऊपर तरक्की के मामलात मुकम्मल तौर से महदूद हो जाते हैं, अशिया बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली नहीं हो सकती, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ आज़ादी होती है, लोगों को सोचने की, काम करने की, अपनी मर्जी का काम चुनने की आज़ादी हो। ये कंट्रोल इकोनॉमी है, यहाँ पर किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं है।
आज़ादी ना होने की वजह से यहाँ पर तरक्की के मौके निहायत महदूद हो जाते हैं और क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के मामलात भी निहायत कम होते हैं। लोगों के पास किसी किस्म के कोई राइट्स नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, लोगों के हुकूक नहीं होते, लोग अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। लोगों को हर मामले में अपने निहायत निजी मामलात के अंदर भी हुकूमत से राय लेनी पड़ती है। हुकूमत अपनी मर्जी से ही उनको हर काम करने की इजाज़त देगी। हुकूमत मना कर देगी तो वहाँ पर वो अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। इवन के तफरी के मामलात भी हुकूमत के हद तक ही महदूद होते हैं। हुकूमत जिस चीज़ को अलाउ करेगी, सिर्फ वही चीज़ वहाँ पर मुमकिन हो पाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस किस्म की रियासतें जो हैं, वो एक जेल की सूरत इख्तियार कर लेती हैं कि आप महदूद कर दिए गए हैं, आपको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की राय पर अमल करना है। आपकी कोई चीज़ आपकी मर्जी से नहीं है। कंज्यूमर मुकम्मल तौर से हेल्पलेस है। कंज्यूमर की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कंज्यूमर की ख्वाहिशात को नहीं देखा जाएगा। कंज्यूमर सिर्फ मार्केट में जाएगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ वही लेना है जो कि वहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर उसकी अपनी कोई ख्वाहिश है तो वो उसकी पूरी नहीं की जाएगी। जब इस किस्म की रियासतें होंगी तो वहाँ पे लोगों का मॉरल बहुत ही लो होगा। लोग चूंकि अपनी मर्जी का काम नहीं चुन पा रहे हैं तो ऐसे काम में उनकी दिलचस्पी नहीं होगी। लोगों को चूंकि जीने का, तफरी का, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के मुतालिक फैसले करने का हक हासिल नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे लोगों का मॉरल निहायत डाउन होता है। लोगों की तबीयत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है और लोग इस किस्म की ज़िंदगी ज़्यादा अरसे तक नहीं गुजार पाते हैं। सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा जो मसला है वो है करप्शन। चूंकि सारी चीज़ें हुकूमत के हाथ में आ गई हैं तो जो हुकूमत के कारिंदे होते हैं, जो हुकूमती मुलाजमीन होते हैं, वो अपनी मनमानियाँ शुरू कर देते हैं। लोग मजबूर हो जाते हैं उनकी मानने के ऊपर क्योंकि हुकूमत ही सुप्रीम है। इसी और हुकूमत क्या है? हुकूमत के इदारे। तो जो हुकूमत के इदारे हैं वो मुकम्मल तौर से हर चीज़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब लोगों को अपनी छोटी-छोटी सी ज़रूरियात के लिए भी इन इदारों के पास जाना पड़ता है और फिर ये इदारे उन लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं और फिर करप्शन का आगाज़ हो जाता है। लोगों की ज़रूरियात और उनके आम मामलात को हल करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ली हुई है और जो हुकूमत के कारिंदे हैं, वो उनको पूरा करने के लिए फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करवाते हैं, जिससे करप्शन की इब्तिदा हो जाती है और करप्शन पूरे माशरे के अंदर फैल जाती है। तो अगर इसका खुलासा किया जाए तो सोशलिज्म का निज़ाम आज से 100 150 साल पहले जब शुरू हुआ था, इस तो उसके अंदर जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कोई अमीर और गरीब नहीं होगा। लेकिन जब ये सोशलिज्म मुकम्मल तौर से अपनाया गया तो फिर इसकी जो मसाइल थे उन मसाइल ने फिर ये अंदाज़ा हुआ कि इस किस्म की रियासत का चलना ज़्यादा देर मुमकिन नहीं होता। लोगों की जो शख्सी आज़ादी है वो निहायत अहम होती है, लोगों के हुकूक अहम होते हैं, लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ देना निहायत ज़रूरी है। यही वजह है कि जिन ममालिक में जिनमें रूस और कुछ दूसरे ममालिक शामिल हैं, जहाँ पर इस निज़ाम को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ अपनाया गया, इनमें फिर कुछ अरसे के बाद फिर मसाइल आए